اچھا جناب، ابھی کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا سیگمنٹ میں ہمارے ایک ساتھی نے رائزنگ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے بزنس کے حوالے سے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں، جو مہمانوں کو ہم بلاتے ہیں، ان کی بہت تعریف کی کہ ہماری نوجوان نسل کو، خاص طور پہ خواتین کو اور حضرات کو بھی نئے کاروبار شروع کرنے کے جو مشورے دیے جاتے ہیں اس سے بہت سی زندگیاں بدلی ہیں۔ آج بھی ہماری ایک ایسی مہمان ہے، سبوہی حسین ان کا نام ہے، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے راولپنڈی ویمن چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی، اور سبوہی بھی خود بھی ایک انٹرپرینیور ہے، ایک بزنس وومن ہے، لیکن یہ بہت سی خواتین کی بزنس کے حوالے سے انکریڈیبل انداز میں زندگیاں بدل رہی ہیں۔ آج ان سے ان کی اور ان خواتین کی کچھ کہانی سنیں گے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم سبوہی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ آنے کے لیے اچھا جی، ہاں جی، بہت اچھا لگا آپ کے پاس یہاں پر آ کر، اور ایک موقع ملا ہے اپنے آپ کے بارے میں بیان کرنے کا اور ایک بزنس انٹرپرینیور کے ایز اے بیان کرنے کا۔ بالکل بالکل جناب، اور آپ کا ماشاءاللہ پورٹ فولیو بھی اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں آف راولپنڈی ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی۔ پہلے مجھے ذرا تھوڑا سا کانسیپٹ بتائیے کہ آپ جو مختلف خواتین اور بزنسز کے حوالے سے کام کرتی ہیں، تو یہ ساری کہانی کیا ہے، اور وہ خواتین کون ہوتی ہیں، وہ کیا ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، کم تعلیم یافتہ ہیں، کیا سکلز ہیں ان کے اندر؟ اچھا، اگر اس کی تھوڑے سے بیک گراؤنڈ پہ جانا چاہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ کروں گی، کیونکہ میں نے بزنس تب سٹارٹ کیا تھا جب شادی ہو جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہو گئے، اب زندگی ختم ہو گئی۔ اچھا، انسان نارملی ہمارے یہاں یہی کانسیپٹ ہے کہ بس شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سارے کے بعد بزنس شروع جی 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 میں اس لائف میں اس دور اور ہمیں آئی تب تھی جب میری شادی ہو گئی تھی، بچے ہو گئے تھے، اور میرے اس وقت 4 بچے تھے، اینڈ میں پاکستان میں تھی اس وقت۔ تو میں نے اس وقت مجھے یہ لگا کہ میں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہوں، میرے پاس بہت سارے اسکلز ہیں، آئیڈیاز ہیں جو میں نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو دس از ناٹ دا لائف، کہ یہ لائف کا اینڈ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے ہو گئے اب بس یہاں پہ اس کی زندگی۔ نہیں، اس کے بعد ایک اور کام بھی ہوتا ہے، کیا؟ ان بچوں کی شادیاں کراؤ پھر۔ نہیں، وہ ٹائم ابھی بہت دور تھا۔ اچھا، یہ جو بیچ کا جو فری ٹائم تھا، ابھی تو میری جو ٹوئنز بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں اس وقت 6 منتھ کی تھیں، جب مجھے خیال آیا کہ جب بیٹیاں آ جاتی ہیں نا تو گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ بے شک، تو ان سے رونق سے آپ کو دل کرتا ہے کہ ان کے کپڑے ڈیزائن کرنے کا، چیزیں ڈیزائن کرنے کا، اور اگر آپ کے اندر ایک ڈیزائننگ کا ایلیمنٹ ہو، آرٹس کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہو، تو پھر آپ کو شوق پڑتا ہے۔ سو میں نے 2008 سے اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی آفٹر ڈیلیورنگ مائی 2 ٹوئنز ڈاٹرز۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ لیجر بک کیسے بنتی ہے، مارکیٹ میں کیسے جایا جاتا ہے، کارڈز کیسے بنتے ہیں، برانڈنگ کیا چیز ہوتی ہے، ٹیلر کیسے ہائر کرنے ہوتے ہیں، شاپ کیسے بنانی ہوتی ہے، یہ چیزیں کچھ نہیں پتا تھیں۔ آئی ٹوک اٹ ایز اے چیلنج اپنی ذات کے ساتھ، کیونکہ مجھے اس وقت سب نے کہا کہ تم بڑا بے وقوفوں والا سٹیپ ہے کہ بچوں کے ساتھ، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا بڑا سٹیپ لوگی، ہو نہیں سکتا۔ سو میں نے اس وقت اس چیز کو ایک چیلنج کی طرح لیا تھا۔ میں نے اپنے ہی گھر سے، اور آپ کہاں کی بات ہے؟ آئی واز ان لاہور۔ اچھا، لاہور کی بات، ٹھیک۔ سو میں نے اپنے ہی گھر سے اپنے ہی جہیز کے کپڑے نکالے تھے۔ اوکے۔ سو میں نے ان کے ساتھ ایک ایگزیبیشن آرگنائز کی تھی فرسٹ ٹائم، اور جو فرسٹ میری ارننگ تھی واز ان 2008، فرسٹ ڈے کی ارننگ واز 70,000۔ اوکے، نہیں تو آپ نے کہا کیا تھا کہ آئے میں اپنے جہیز کے کپڑے بیچ؟ نہیں، اس طریقے سے نہیں، obviously اس کے پیچھے ایک جرنی تھی، ٹیلرز ہائر کیے، ٹیلرز کے ساتھ آہستہ آہستہ میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتی گئی۔ obviously جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، انسٹچ نکالا نا۔ دیکھیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس جملے کی مجھے کوئی اور تشریح بتا دیں۔ یہ 2 خواتین سمجھ سکتی ہیں، اب یہ کوئی اس کو ڈی کوڈ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے سمجھ گئی تھی آپ کہاں پہنچے۔ جب آپ پاکستان میں شادی کی بات کرتے ہیں تو انسٹچ کپڑا ڈھیر کے حساب سے آپ کو صندوق آتا ہے، تو جو کہ کئی دفعہ پڑا رہتا ہے، کئی دفعہ گیون وہ اس میں کام آ جاتا ہے۔ سو میں نے، کیونکہ مجھے اس وقت کوئی سپورٹ نہیں تھی اور مجھے یہ تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو پروف کرنا ہے۔ پہلے دن سے نا کوئی اس ٹائپ کی انکریجمنٹ نہیں تھی، کیونکہ میرے فیملی چاہتی تھی کہ میں بچوں پہ فوکس کروں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا بہت بڑا اسٹرانگ ڈلما ہے کہ جب بچے پیدا ہو جائیں تو بس دیٹس اٹ، یور لائف از فنشڈ۔ پھر کیا ہوا؟ سو وہاں سے میں نے اسٹارٹ لیا، اور اب تو آپ ماشاءاللہ ملٹیپل بزنسز اب تو کرتی ہیں، آئیڈیاز نکلتے ہیں، جنریٹ ہوتے ہیں، اور پھر رجسٹر ہو جاتے ہیں آئیڈیا۔ چلیں، وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے دوسری خواتین، اس پہ بھی آنے سے پہلے اب ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک اچھی بزنس وومن ہونے کے لیے 4-5 کیا پرسنالٹی ٹریٹس ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ اب آپ جب مڑ کے دیکھتی ہیں
तो क्या था सुबूही में, ऐसा क्या था डिफरेंट? करेज, सबसे पहले मैं समझती हूँ कि करेज बहुत ज़रूरी है। करेज और अपने साथ कमिटमेंट, कि वो आप जो प्रूव करना चाहते हैं आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बहुत बेवकूफ़ों वाला आइडिया है, मत करो, पैसा मत ज़ाया करो, मत अपने पैसे को ब्लॉक करो, बट आपके अंदर की जो लगन होती है ना वो रुकनी नहीं चाहिए। एक बड़े मशहूर राइटर की एक सेइंग थी फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के कभी भी बिजनेस के लिए मशवरा किसी जॉब ओरिएंटेड से ना लेना। अरे वाह। सो दे विल नेवर, आपको कभी भी पुश नहीं करेंगे कि बिजनेस कैसे होता है। बिजनेस के लिए हमेशा आपको एक ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो बिजनेस में ऑलरेडी फेलियर भी है और अचीवर भी है। अच्छा। सो आपको एटलीस्ट ये दोनों कंट्रास्ट जो हैं, आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस खाई में गिरने जा रहे हैं। so ये एक बहुत बड़ा एक समंदर है जिसमें आप डूबने जाते हैं, तैरते हैं, आप सीखते हैं इसमें। ये बहुत बड़ी एक चीज है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग। अब ये बताएं सुबूही के अब माशाल्लाह बच्चे बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह, और अब आप मल्टीपल बिजनेसेस करती हैं, अब आप दूसरों की जिंदगियां भी बदल रही हैं, बहुत सी दूसरी खवातीन को एनकरेज करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, उनको ग्रूम करती हैं। इस सारी जर्नी में आपके हस्बैंड का क्या? He was very supportive. He was very supportive. He was the only one. मेरा ख्याल है पहले बिजनेस पे उनका सपोर्ट उतना नहीं था क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और वो भी ये समझ रहे थे कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये इतना कुछ हैंडल नहीं कर सकेंगे। और जब आपने उन्हें बताया होगा कि जहेज के कपड़े बरी के नहीं है तो उन्हें कहा होगा ये तसल्ली हो गई होगी। तब भी नहीं थे, वो फर्स्ट डे की अर्निंग के बाद हुए थे, शॉक हो गए थे कि ये क्या हो गया, ये तो प्रूव कर गई है अपने आप को। So उसके बाद ही वाज वेरी सपोर्टिव विद मी और हमेशा उन्होंने मेरे जिस भी बिजनेस का काम मैं स्टेप लेना चाहा है उसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। नहीं, और आप यहाँ पे देखें कि कितनी अच्छी बात है। इधर एक बच्चा हो जाता है तो हम लोग ये कहते हैं इनके दो मतलब ट्विंस बेटियां हुई हैं। हाँ। ट्विंस को संभालना, और उससे पहले दो थे, बिल्कुल, तो चार हो माशाल्लाह। गए। माशाल्लाह, ये वाकई कमेंडेबल बात है और ड्यू क्रेडिट। एंड यू विल नॉट बिलीव कि मेरी बेटी ने जब क्रॉल ड्राइंग करना शुरू की थी तो फर्स्ट डे उसकी जो फर्स्ट ड्राइंग थी वो ड्रेस उसने डिजाइन किया था क्योंकि वो देख ही ये रही क्योंकि वो देख रही थी मुझे। आई मीन लाइक दे वर इन बाउंसर्स, जब मैं उनको वो लेकर जाती थी कैरी कॉट में और बाउंसर्स में अड्डास पे लगे होते थे और मैं वहां पर जमीन पे बैठी हुई होती थी, कारीगर के साथ काम कर रही होती थी और वो उसी बाउंसर्स में मेरे साथ होते थे। मैंने कभी उनको नहीं छोड़ा। जनाब, कोई भी अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कोई भी बहाना हीला नहीं चलेगा। बिल्कुल। शादी हो गई है, अब क्या करना? नहीं। बच्चे हो गए, अब क्या करना? 2 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, अब क्या करना? नहीं। आपने अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है। आपने अंदर के अपने बिजनेसमैन को, बिजनेस पर्सन को दोबारा से रीलिव करना है तो सुबूही हुसैन की कहानी आपके सामने है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, टोटल कितने कारोबार आज तक किए आपने? बिजनेस वेंचर्स आपके क्रेडिट में कितने? मेरे ऑलमोस्ट 5 हैं। 5। नाकाम इसमें से कितने हैं या इसके अलावा कभी फेलियर हुआ? आई डोंट थिंक सो कि नाकाम हुए। किसी रीजन की वजह से अगर छोड़ा हो, चेंज किया हो, स्विच किया हो तो वो एक अलग रीजन है। मुझे लगता है कि जब आपकी लगन हो ना, जब आपका पूरा फोकस हो उस काम पे तो वो नाकाम कभी भी नहीं होता। ये मेरा मानना है। अच्छा तौसीफ साहब, मैं सबीन को जानती हूँ। सुबूही को? हाँ सबीन, ओके। आप याद आ रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि सबूही को ने जो काम करना है ना, सबूही की आप उस वक्त लगन देखा करें। इसने नहीं देखना कि बाहर तूफान है या क्या है। वाह। सबूही ने वो काम करके छोड़ना है, बस इरादा हो गया तो काम हो गया। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुबूही हुसैन से अब हम जानेंगे कि जो 3 एरियाज, आइडिया के बाद ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद फाइनेंसेस, यानी ये 3 स्टेप्स जो खवातीन को हेल्प करती हैं अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए कि आइडिया क्या हो, उसकी ट्रेनिंग कैसे हो और उसके लिए फाइनेंसेस कैसे आए। इन 3 स्टेप्स की कहानी और 2 इनकी फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स की कहानी हम इनसे सुनेंगे राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।
रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुबूही हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी अपनी भी एक इनक्रेडिबल एज बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहानी आज हमने सुनी। लेकिन अब ये बहुत सी दूसरी खवातीन की एज बिजनेस पर्सन जिंदगियां बदल रही है, वो जरा मुख्तसरन हमें बताइए जी, क्या करती हैं आप उनके साथ? अभी आप लोगों का जो थोड़ी देर पहले सेगमेंट था बिजनेस से रिलेटेड, जो लॉयर थी महम, मैं उनको सुन रही थी। हमारे इस जो वुमेन चैम्बर है, इसमें बेसिक हमें जो स्टेप आता है वो लॉयर का ही होता है, जो अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने का होता है। आप जब आइडिया कुछ सोचते हैं, उसको रजिस्टर करा लेते हैं, अब आप कहाँ जाएं? कोई आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई आपके पास ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि ये मैंने अपनी पिछली कहानी इसलिए बताई कि मुझे वुमेन चैम्बर से कहाँ आकर मदद मिली। जिस वक्त मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आई वॉज टोटली न्यू, आई वॉज अ न्यू चाइल्ड इन दिस इंडस्ट्री। और जब मैं आज 10 साल के बाद अपने आप को इस इंडस्ट्री में देखती हूँ, तो आई एम प्रो नाउ। वो किस तरीके से वुमेन चैम्बर आपको एक ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट और आवाम के बीच में एक ब्रिज है, ठीक है, जो आपके लिए सहूलत मैसर करता है, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कैसे करते हैं, अपनी कंपनी को कैसे रजिस्टर करते हैं, एंड जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग, उसके कोर्सेज, एंड देन फिर हम वुमेन बैंक्स के थ्रू या डिफरेंट बैंक्स के थ्रू हम आपको फाइनेंसेस करा कर देते हैं। मेजर हमारा ये होता है कि हम ट्रेनिंग दें, कोर्सेज कराएं लोगों को। और बिजनेस कोई भी हो, आइडिया आपका आना चाहिए, दैट डज नॉट मैटर। तालीम की कोई कैद नहीं है। हमारे पास ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जिसमें खवातीन, अच्छा अनफॉर्चुनेटली मोस्टली खवातीन वो हैं जो सिंगल मदर हैं, सोसाइटी के प्रेशर से हैं, और जो खुद अपने आप को कुछ बनाना चाहती हैं, जो अपने आप को साबित करना चाहती हैं। बस उनको एक कहानी हमें बताइए। अभी रिसेंटली हमारा एक इनॉग्रेशन होने जा रही है खातून की। उनकी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा थे। अभी रिसेंटली हम उनको एक सैलून बना कर दे रहे हैं, और उसमें साथ उनकी ट्रेनिंग भी हुई है, नॉट ओनली सैलून से रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट की, FPR की हमने ट्रेनिंग करवाई है, टेक्सटेशन की ट्रेनिंग करवाई है, जितने छोटे शॉर्ट कोर्सेज हो सकते थे वो हमने उनको ट्रेनिंग करवा कर दी। जब हम भी जो जिक्र कर रही थी कि रजिस्टर कैसे कराना है। एग्जैक्टली। सो वो जो रजिस्टर करवाने का प्रोसीजर है, जो लॉयर तक जाने का प्रोसीजर है, वो पहले हम आसान कर देते हैं। जब आपके पास ये इतने सारे गेटवेज होते हैं, तो आपका ये लक होती है कि आप किस किस में जाना चाहते हैं। तो गेटवेज बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं। कोई ऐसी स्टोरी जो पिछले इस सारे अरसे में आप देखते हैं कि अब उन्होंने अचीव कर लिया, ये तो इनॉग्रेट होने जा रही है ना, कोई बहुत अच्छा उन्होंने फिर कारोबार चलाया, और सुबूही को अपने अलावा भी कोई और सुबूही नजर आई इस पूरी कहानी? बहुत सारी ऐसी हैं, मैं नाम नहीं ले सकूंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। खवातीन हैं, एक खातून थी जिन्होंने अपना बहुत स्क्रैप से बिजनेस स्टार्ट किया था। वो सेकंड हैंड फर्नीचर सेल परचेज करते थे, और वो बहुत, उनके पास कोई स्किल्स नहीं थे, ब्यूटी के स्किल्स नहीं थे, कोई एजुकेशन का उस तरह का नहीं था। तो वो एक बहुत छोटा सा कारोबार था उनका, जिसमें वो चाहती थी कि घर से बैठे वो ऑनलाइन करती थी सेकंड हैंड जो फर्नीचर होता है सेल परचेज। अब माशाल्लाह उनकी एक अपनी शॉप है, और इनका अपना नया फर्नीचर का कारोबार है, और वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। हमारी ये इस्लाम रावलपिंडी में ही है, और वो हमारी HR की टीम भी है माशाल्लाह से अब। अच्छा, गुड गुड। तो वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह बिजनेस लेवल पे पहुंच गई हैं। आपको पता है आपकी बड़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन आपको पता है आपकी दोस्त शायरा भी है? जी पता है, हर वक्त सुनती हूँ। हर वक्त सुनती है? कुछ समझ खुदा न खास्ता आता तो नहीं हो? देखिए मेरी बात सुने, वो सुनाती रहती है, मैं चाय पी के खुश होती रहती है। अच्छा। बस ऐसा चलता है। और आप इस वाहिने में होती है सुबूही कि इनको समझ आ रही है? नहीं, उनका मैसेज आ जाता है, मैं पूछती हूँ, समझ आया? हाँ समझ आ गया, सोने का टाइम हो गया। शुक्र करें, ये नहीं कहा समझ तो आया कि नहीं आया, लेकिन तुम्हारी शायरी पढ़ के नींद आ गई। नहीं अभी तक नहीं, ऐसी नौबत नहीं है। जी, हमारा प्रोग्राम का वक्त भी एंड हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा सुबूही के जाते जाते कुछ इनायत हो जाए। मैं कुछ अल्फाज उन औरतों के लिए कहना चाहूंगी जो दोबारा से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करना चाहती हैं। जरूर, इरशाद। मैं खुद की नई तस्वीर बनाना चाहती हूँ, नए सिरे से तकदीर बनाना चाहती हूँ। ना कोई धोखा हो, ना रयाकारी इसमें, ऐसी कोई तदबीर बनाना चाहती हूँ। पशेमान हूँ अपनी यादों पे, उन यादों की तारीख बनाना चाहती हूँ। मैं फिर से अपनी तस्वीर बनाना चाहती हूँ, एक मुकम्मल तकदीर बनाना चाहती हूँ। क्यों हैरान हो इस जुर्रत पे मेरी, क्यों हैरान हो इस जुर्रत पे मेरी, मैं तो बस अपने लिए एक शमशीर बनाना चाहती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं अपनी तस्वीर बनाना चाहती हूँ, फिर किसी की ताबीर बनाना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। खुश रहिए, जीती रहिए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। फातिमा, आपकी दोस्त से मिलके जी खुशी हुई।
थैंक यू वेरी मच कि आपने इनको बुलवाया. बिल्कुल नहीं ऐसे जो लोग हैं उनको मुझे लगता है राइजिंग पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो है ही ऐसा कि हम सेलिब्रेट करें. मैं पता है आप उस वक्त एक चीज सोच रही थी कि आपने देखा है आज ऐसे लग रहा था कि औरतों का दिन है. लिटरली देखिए हम शुरू से अभी तक क्योंकि मदर्स डे था और हमने आज ट्रिब्यूट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को दिया, खवातीन जो बिजनेस की दुनिया में आती हैं उसी से हमने सिलसिला जोड़ के आज का राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए सजाया. कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे सोशल्स पे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे. जिंदगी रही तो मैं और फातिमा कल आपकी खिदमत में और हमारी पूरी टीम कुछ नए चेहरे कुछ पुराने चेहरे नए अंदाज में नए सेगमेंट सजा के लाएंगे. खुश रहिए. खुदा हाफिज.